سورج سے اوپر اور ابھی ستارے ہیں، کہکشائیں ہیں، پھر اس کے بعد اوپر اور آسمان ہے، آسمان کا اتنا لمبا فاصلہ ہے۔ تو اب بندہ اگر جائے زمین سے آسمان تک، کتنا لمبا فاصلہ ہے، زمین سے آسمان تک کتنا لمبا فاصلہ ہے۔ اور سورج جو ہے، سائنس میں آپ پڑھتے ہوں گے سورج زمین سے کتنی دوری پر ہے۔ دیکھا کہ وہاں پہ اس محل میں ایک حور بھی ہے، وہ جنت کے پانی میں سے، تالاب جیسے ہوتا ہے اس میں سے وضو کر رہی ہے۔ تو پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ یہ سفر معراج کا معجزہ ایسا عظیم معجزہ ہے جس پر آج تک عقل انسانی ورطہ حیرت میں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير، صدق اللہ العظیم۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود اور سلام کا نذرانہ پیش کر دیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ جو 15ویں پارے میں ہے، پہلی آیت ہے، وہ تلاوت ہوئی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جس کا ترجمہ ہے پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے دکھائیں اپنی نشانیاں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں سیر کا جو ذکر ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے معراج کی شب کہتے ہیں رات کو، معراج کی رات اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیر کرائی، مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ مسجد اقصی تشریف لے گئے۔ وہاں پہلے سے ہی تمام انبیاء کرام علیہ السلام موجود تھے۔ انبیاء کرام علیہ السلام پہلے سے وہاں پر موجود تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی اور
सबकी इमामत फरमाई। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आज़ान पढ़ी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया से मुसाफहा किया। मुसाफहा यानी हाथ मिलाना। कुछ से मुआनका भी किया, मिले सब अंबिया से। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील के साथ वहाँ से आसमानों की तरफ गए। वहाँ से आसमानों की तरफ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बुराक लाया गया था जन्नत से। बुराक एक सवारी थी जिस पर बंदा सवार होके कहीं जाता है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होकर आसमानों पर तशरीफ ले गए। साधु आसमानों पर गए। इसकी तफसील है, तफसील हम जिक्र करते हैं। ये मोजज़ा मेराज तारीख़ इर्तिकाए नस्ल इंसानी का वो संग मील है जिसे कसर ईमान का बुनियादी पत्थर बनाए बगैर तारीख़ बंदगी मुकम्मल नहीं होती और रूह की तिश्नगी का मदावा नहीं होता। मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीख़ इंसानी का एक ऐसा हैरत अंगेज़, अनोखा और नादिर वाक़या है जिसकी तफसीलात पर अक्ल नाक़िस आज भी हैरान और शुशदर है। इसे कुछ सुझाई नहीं देता कि सफ़र मेराज कैसे तय हुआ। मिसाल के तौर पे ज़मीन से आसमान तक कितना लंबा फासला है। ज़मीन से आसमान तक कितना लंबा फासला है। और सूरज जो है, साइंस में आप पढ़ते होंगे, सूरज ज़मीन से कितनी दूरी पर है, किसी को मालूम है? अच्छा, सफ़र मेराज इसके अच्छा, एक तो ज़मीन से सूरज इतना फासले पर है, इसके बारे में है कि तकरीबन 1,90,95,000 किलोमीटर दूर है। सूरज इतना ज़मीन से फासले पर है। फिर आसमान इससे भी और ऊपर है। कितना फासला है? 1,90,95,000 किलोमीटर। इतना है? कितना है? 2,03,000। अच्छा, 2,03,000 नहीं, साइंस अभी और तरक्की कर गई है। तो अच्छा, इतना लंबा फासला है। चलो 2 लाख ही लगा लो। 1,90,95,000 जमीन से सूरज जितना फासले पर है। इस पर बंदा जाए तो बंदे को कितना टाइम लगेगा? मिसाल के तौर पे आप इस एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, कितना टाइम लगता है? भाई ये तो चंद किलोमीटर है। 100, ये ऐसे समझो लाहौर इस्लामाबाद है, आपके लिए 1500 2000 किलोमीटर फासला है। तो जहां 2000 2 लाख का लंबा फासला हो, फिर करोड़ों का फासला हो, तो वहां तक पहुंचने में बंदे को कितना टाइम लगेगा? बहुत लंबा टाइम लगेगा, साल लगेंगे। उसके लिए लंबी भी जिंदगी चाहिए। फिर एक आसमान तक बंदा, सूरज है ये, अभी हम जमीन से सूरज तक जितना फासला है वो बात कर रहे हैं। सूरज से ऊपर और अभी सितारे हैं, कहकशाएं हैं, फिर उसके बाद ऊपर और आसमान है। आसमान का इतना लंबा फासला है। तो अब बंदा अगर जाए, एक तो उसको खाने पीने की जरूरियात, उसके लिए सवारी, फिर उसके लिए इतनी लंबी जिंदगी भी चाहिए। आप लोग समझ रहे हैं? इतनी लंबी जिंदगी भी चाहिए कि बंदा वहां तक पहुंचे। वहां तक फिर एक आसमान से आगे दूसरे आसमान तक इतनी फासला है जितना इस जमीन से लेकर पहले आसमान तक है। हर आसमान से दूसरे आसमान तक इतनी लंबा फासला है।
फिर उससे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, ये इतने आसमानों के दरमियान जो फासला है, इसके लिए तो बंदे को तकरीबन कोई 100 सदियां चाहिए जिससे बंदा जाके सातवें आसमान पे पहुंचे, इतना लंबा सफर करे, और वो भी मुसलसल सफर करे। तवज्जो है, वो भी मुसलसल सफर करे, बीच में रुके नहीं, फिर जाके सातवें आसमान पे पहुंचेगा। कि जमीन से आसमानों का लंबा दूरी इतनी है, फासला इतना ज्यादा है। फिर ये तो हो गए 7 आसमान। अब जितना जमीन और 7 आसमानों के दरमियान ये फासला है, यहां से लेकर 7वें आसमान तक जितना दूरी है, 7वें आसमान से लेकर ऊपर सिदरतुल मुंतहा है। 7वें आसमान से आगे ऊपर क्या है? सिदरतुल मुंतहा। अब सिदरतुल मुंतहा में भी इतना लंबा फासला है, वहां तक पहुंचने के लिए 100 करोड़ बंदे को और दिन चाहिए, कई सदियां और चाहिए। फिर वहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, उससे आगे सिदरतुल मुंतहा से भी आगे वहां जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुक गए। सिदरतुल मुंतहा पे जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुक गए। जहां आप सवारी लेकर साथ चले थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील से कहा, जिब्रील आगे चलो। जिब्रील ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, 7 आसमानों से मैं ऊपर आया हूं, सिदरतुल मुंतहा तक आया हूं, अब इसके बाद आगे और आगे जाने की मुझे इजाजत नहीं है। या रसूल अल्लाह, अगर इससे आगे मैं एक कदम भी बढ़ाऊंगा तो मेरे पर जल जाएंगे। क्या कहा? या रसूल अल्लाह, अगर इससे और आगे मैंने कदम बढ़ाए तो मेरे पर जल जाएंगे।